Oh no, I forgot to switch off the AC at home. But yes, now I can switch off my new smart AC with my smartphone. Hi, just give me a minute. आपको पता है, I forgot to switch off the AC at home. फिर आपने नोट किया कि मैंने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया? I used my smartphone. अब आप पक्का क्यूरियस होंगे ये जानने के लिए कि मैंने ऑफिस से घर का एसी कैसे ऑफ कर दिया। This can be easily done using the Internet of Things, which is also popularly known as IoT. IoT is one of the most revolutionary technologies. अब हमने IoT की बात तो स्टार्ट कर दी, पर ये IoT होता क्या है? IoT ऐसी सभी डिवाइसेस का नेटवर्क है जो कि हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं and these devices can be connected to the internet also. अभी तक आपने देखा ही होगा कि हम अपने फोन्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, डेस्कटॉप्स इन सबको इजीली इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। पर आपको पता है अब हम इनके अलावा भी और बहुत टाइप की डिवाइसेस को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। Almost all appliances like AC, TV, smart light, locks, everything can be connected to the internet. And we can monitor them remotely also. Remotely का मतलब even when we are not near them. So we can say that IoT is the system of interrelated devices connected to the internet which transfer data over a wireless network. See, this is how IoT has really transformed how we connect with the world around us. Let me show you how a smart home looks like. Welcome home. See, this is the magic of a smart home. What? Open up the curtains. Opening curtains. A smart home contains all such smart appliances like AC, TV, security alarm, fire alarm, doorbells and many more. और ये सभी devices एक दूसरे से connected होती हैं using the internet. और अगर आप इन डिवाइसेस का डेटा एक्सेस करना चाहते हैं, you can easily do it using the mobile phones. सोचिए, आपकी लाइफ कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी अगर आप मॉर्निंग में उठ रहे हैं, आपकी अलार्म क्लॉक रिंग होते ही कर्टेन्स ओपन अप हो जाते हैं, वाटर हीटर भी ऑन हो जाता है. All this can be made possible using the Internet of Things. Alright, now it's time for me to go for a workout. Yes, I just completed my 10,000 steps today. और इस चीज का मैं बहुत ही इजीली ट्रैक रख सकती हूँ अपने फिटनेस ट्रैकर में. और इस फिटनेस ट्रैकर में मैं सिर्फ यही नहीं, और भी काफी सारी चीजों का ट्रैक रख सकती हूँ, जैसे कि माय हार्ट रेट, द नंबर ऑफ आवर्स व्हिच आई हैव स्लेप्ट एंड आज सिटी का वेदर कैसा है, इन सब का भी. अब जब हमने वेयरेबल IoT डिवाइसेस की बात स्टार्ट कर दी है, लेट मी टेल यू अबाउट वन मोर सच डिवाइस. इट इज कॉल्ड एन NFC रिंग. ये रिंग बिल्कुल सिंपल रिंग की तरह दिखती है, बट इट हैज सेंसर्स, नेटवर्क कनेक्टिविटी एंड सॉफ्टवेयर ऑल्सो. अगर आपके पास NFC रिंग है, then you need not worry about carrying your credit cards, door keys, locks, etc. Because with the help of NFC ring, you can easily make payments, unlock doors and almost your complete mobile life. और भी wearable IoT devices होते हैं, जैसे कि smart posture trainer, gaming simulator and smart shoes also. Now that I have done my exercise, I will take a leave. अब जब आप स्मार्ट होम और स्मार्ट वेयरेबल्स के बारे में जान चुके हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू दिस स्मार्ट कार ऑल्सो. डू यू नो दिस कार ऑल्सो हैज मेनी IoT enabled फीचर्स, और इन फीचर्स की हेल्प से ये स्मार्ट कार ऑन द स्पॉट डिसीजंस भी ले सकती है. ऐसे ही ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को भी IoT ने बहुत ज्यादा एनहांस कर दिया है, जैसे कि नाउ वी हैव
efficient traffic management. You all know how important it is. Then we have automated toll and ticketing also. Along with that, we have improved safety of public transport. And we get self-driving cars also like this one. And then we get this feature of smart parking. आपको मजा आता ही होगा ना जब आपको स्मार्ट पार्किंग जैसा फीचर मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की तरह ही IoT ने और भी सेक्टर्स को काफी एनहांस कर दिया है। क्या देखना चाहेंगे आप? Here I am in a hospital which is IoT equipped. आपको पता ही होगा कि हेल्थ केयर सेक्टर कितना ज्यादा क्रूशियल होता है। अब सोचिए अगर यहाँ भी IoT डिवाइसेस आ जाए तो कितना हेल्पफुल होंगी। हेल्थ केयर सेक्टर में करेक्ट मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि पेशेंट्स का ग्लूकोज लेवल चेक करना, उनके हार्ट रेट की कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग करना। नाउ विद द हेल्प ऑफ IoT डिवाइसेस nurses can do it very easily and they can generate alerts also in case of any emergency. और भी कुछ डिवाइसेस होती हैं which are very helpful for the individuals. ऐसी ही एक डिवाइस होती है कनेक्टेड इनहेलर। कभी नाम सुना है आपने कनेक्टेड इनहेलर का? अगर पेशेंट्स कहीं भी अपना इनहेलर भूलने वाले होते हैं then they generate an alert on their smartphones. और एक और डिवाइस होती है, इनको हम बोलते हैं इंजेस्टिबल सेंसर्स। ये सेंसर्स बिल्कुल एक पिल की तरह होते हैं। जैसे आप एक पिल को स्वॉलो करते हैं, आप इन सेंसर्स को भी स्वॉलो कर सकते हैं। और ये सेंसर्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाकर हमारी गट हेल्थ और बाकी सारे सिस्टम्स की रिपोर्ट्स हमारे स्मार्टफोन पर इजीली सेंड कर सकता है एंड वी कैन मॉनिटर देम देयर। और कभी-कभी क्या होता है, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके लिए उनकी बॉडी मूवमेंट बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। ऐसे केसेस में वी हैव वॉइस असिस्टेंट्स। इनकी हेल्प से पेशेंट्स कैन कॉल फॉर असिस्टेंस यूजिंग देयर वॉइस ओनली। देखा आपने कैसे IoT ने हेल्थ केयर सेक्टर को कितना ज्यादा एनहांस कर दिया है। अभी तक आपने देखा कि कैसे IoT ने कुछ सेक्टर्स को कितना ज्यादा एनहांस कर दिया है। इनके अलावा भी IoT can be very helpful in smart farms, smart shops and smart cities also. Now that we have looked at the applications of IoT, let's try to understand the types of devices which we have in IoT. IoT में basically दो types की devices होती हैं। The first one is called general device. इनको हम smart devices भी बोलते हैं। इन डिवाइसेस में अपनी भी खुद की कुछ लेवल की इंटेलिजेंस होती है एंड दे कैन परफॉर्म एक्शंस विदाउट मच ह्यूमन इंटरवेंशन आल्सो। अभी तक हमने जिन भी डिवाइसेस की बात करी लाइक स्मार्ट एसी, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट लाइट्स, स्मार्ट डोर्स, एवरीथिंग, ऑल दीज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्मार्ट डिवाइसेस। एंड द सेकंड टाइप ऑफ डिवाइस इज कॉल्ड सेंसर्स। इनको हम एक्चुएटर्स भी बोलते हैं। इन डिवाइसेस को हम IoT की बैकबोन बोल सकते हैं because these devices detect a change and in return respond to that change. Examples of such devices are temperature sensors, motion sensors, smoke sensors and many more. आपने नोट किया ही होगा when I entered the smart home, उसमें स्मार्ट लाइट्स अपने आप ऑन हो गई थी। तो यहाँ पर लाइट्स हमारी स्मार्ट डिवाइस हुई and the device which sensed by motion is called sensors. चलिए अब आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। It is believed that by 2025 about 80 billion devices will be connected to the internet. है ना इंटरेस्टिंग? अब जब हमने IoT के बारे में इतनी सारी बात कर ली है, तो हम जानते हैं कि IoT डिवाइसेस को यूज करने के बेनिफिट्स क्या हैं। With the help of IoT devices, now we have increased efficiency. The safety and security is also improved. Now we have better resource management also. और जो हमने फील किया कि यूजर एक्सपीरियंस कितना ज्यादा एनहांस हो गया है। This is how IoT opens door to endless possibilities and application, thus reducing the burdens of humans. अब टाइम है एक सिंपल से टास्क का। आप
आपको अपनी सराउंडिंग्स ऑब्जर्व करनी है एंड you have to find out those products which you would like to be IoT enabled and those products will make your life easier. अब आप IoT के बारे में और एक्सप्लोर करिए and keep learning.